Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan and currently I am working as Assistant Professor in Department of Mathematics, ComSets Institute of Information Technology. MTH 471 इंटेग्रल इक्वेशन के सिलसिले का आज हमारा ये 32nd लेक्चर एंड लास्ट लेक्चर ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन। इस लेक्चर का बाकायदा आगाज करने से पहले थोड़ी सी रोशनी लास्ट लेक्चर पे डालते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी और क्या चीज़ें पढ़ी थी। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने ग्रीन फंक्शन की कंस्ट्रक्शन फॉर नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वाया आइगन फंक्शन एक्सपेंशन मेथड से की थी। इसके अलावा बेसिक प्रॉपर्टीज़ कुछ डिफाइन की थी और बेसिक प्रॉपर्टी के साथ एग्जाम्पल सॉल्व की थी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की फॉर्म में कि किस तरीके से हम ग्रीन फंक्शन डेली लाइफ प्रॉब्लम पे डिफाइन कर सकते हैं। आज हमने इस कोर्स का लास्ट आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल क्या था या क्या पढ़ना है वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन और ग्रीन फंक्शन का रिलेशन है। किस तरीके से ग्रीन फंक्शन फ्रेडहोम इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। तो आज के लेक्चर का आगाज शुरू करते हैं। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन and the green फंक्शन। इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है और ये एक दूसरे से किस तरीके से इंटर लिंक हो सकते हैं। कंसीडर द बाउंड्री value problem a naught of x d2 y over dx2 plus a1 of x dy by dx plus a2 of x plus lambda rho of x into y of x equals to f of x, which is equation 1, subject to the boundary condition बाउंड्री कंडीशंस क्या है हमारे पास। y of 0 equal to 0 which is equation 2 and y of 1 equals to 0 which is equation 3. Subject to the boundary conditions y of 0 equals to 0 and y of 1 equals to
0। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस बाउंड्री को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की फॉर्म में डिफाइन करें, लाइक पॉइंट ए, y of a equals to 0 और y of b equals to 0, तो ये हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म का प्रॉब्लम होगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें a नॉट ऑफ x, a1 ऑफ x डिफरेंट वैल्यूज असाइन की जा सकती हैं। नाउ अब हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम किस फॉर्म में आ गया, a नॉट ऑफ x d2 y over dx2 प्लस a1 ऑफ x dy over dx प्लस a2 ऑफ x प्लस lambda rho of x into y of x equals to f of x, which is equation 1, subject to the boundary condition y of a equals to 0 and y of b equals to 0, which is given by equation 2 and 3. Now we show that how this boundary value problem with parameter lambda reduces to a Fredholm integral equation with the green function as its kernel. To do this, we write equation 1 as a naught of x d2y over dx2 plus a1 of x dy over dx plus a2 of x y of x equals to Ly equals to h of x minus lambda rho of x equals to or f of x minus lambda rho of x equals to h of x, which is equation 4. We have purposely shifted the term lambda rho of x y of x
to right hand side in anticipation of involving it inside the final integral to have an integral equation. We note that the green function g of x xi is symmetric when the differential operator L equals to a naught of x d2 by dx2 plus a1 of x d by dx plus a2 of x in equation 4 is सेल्फ एडजॉइंट। अगर हमारे पास ये डिफरेंशियल ऑपरेटर L इक्वल्स टू ए नॉट ऑफ एक्स d2 बाई dx2 प्लस a1 ऑफ एक्स d बाई dx प्लस a2 ऑफ एक्स सेल्फ एडजॉइंट हो, तो सेल्फ एडजॉइंट होने की सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन फंक्शन सिमेट्रिक फॉर्म में डिफाइन है। सेल्फ एडजॉइंट द सॉल्यूशन of equation 4 in terms of green function is y of x equals to minus integral a to b g of x xi f of xi d xi which is equals to minus a to b g of x xi और f ऑफ xi, यहाँ पे अगर मैं इसे h ऑफ xi से रिप्लेस कर दूं तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स टर्म या नॉन होमोजीनियस टर्म वो किस फॉर्म में डिफाइन है, h ऑफ xi dxi, और यहाँ पे वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें f ऑफ xi
minus lambda rho of x y of x d xi, which is equals to minus a to b g of x xi f of xi dxi plus lambda a to b g of x xi into rho of xi y of xi d xi. If we let this is equation 5, if we let k of x equals to minus integral a to b g of x xi f of xi d xi, 6, then equation 5 becomes y of x equals to k of x plus lambda a to b g of x xi rho of xi y of xi dxi, which is equation 7. Which is Fredholm integral equation of the second kind with kernel k of x xi equals to g of x xi rho of xi. This Fredholm equation can be written in more symmetric form if we multiply both sides of equation 7 by source term rho of x square root. So 7 becomes rho of x y of x equals to rho of x into k of x plus lambda a to b g of x xi rho of xi square root of rho of x
y of xi d xi and let u of x equals to rho of x k of x and g of x equals to rho of x and g of x equals to rho of x y of x एंड यहाँ पे हमारे पास k of x थोड़ा सा उलट हो गया u of x equals to square root of rho x into y of x क्योंकि फंक्शन को हमने अननोन फंक्शन के इक्वल लेना है कर्नल इज गिवन g of x are in advanced form given rho of x into k of x equals to g of x and u of x equals to rho of x y of x. Simply write in u of x equals to square root of rho of x into y of x and g of x equals to rho of x into k of x. Then above expression can be written as u of x equals to g of x plus lambda a to b rho of x rho of xi g of x xi u of xi d xi. बेसिकली ये टर्म कहाँ से आई? अगर हम प्रीवियस इक्वेशन को देखें जिसमें हमने रो ऑफ x और उनको मल्टीप्लाई किया था तो वो वैल्यू हमारे पास किस फॉर्म में थी? रो ऑफ x इंटू y ऑफ x इक्वल्स टू रो ऑफ x इंटू k ऑफ x प्लस लैम्डा a टू b. उसमें जो रो ऑफ x मल्टीप्लाई किया था वो रो ऑफ x कुछ इस फॉर्म में आया रो ऑफ x इंटू रो ऑफ xi g ऑफ x xi और इसकी हाफ वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी रो ऑफ xi इंटू y ऑफ xi ताकि ये सारी की सारी फॉर्म u ऑफ x की फॉर्म में लिखी जा सके d xi. और इसे अगर हम इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करें तो ये वही फॉर्म हमारे पास बन रही है जो हमने लेट की थी u ऑफ xi के इक्वल. स्क्वायर रूट ऑफ रो ऑफ xi इंटू y ऑफ xi इक्वल्स टू u ऑफ xi विच इज इक्वेशन 8 given our equation 8 as we know that the green function g of x xi is symmetric
when the differential operator L in 1 is self adjoint. It follows that the kernel K of x xi equals to rho of x xi into g of x xi of the boundary R of the resulting Fredholm equation it is obviously सिमेट्रिक। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो फॉर्म डिफाइन है और जो कर्नल डिफाइन है रो ऑफ एक्स रो ऑफ जाई जी ऑफ एक्स एक्साई ऑफ द रिजल्टिंग फ्रेडहोम इक्वेशन 8 इज ऑब्वियसली सिमेट्रिक। ये था रिलेशन बिटवीन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन एंड ग्रीन फंक्शन कि किस तरीके से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हमने कन्वर्ट किया फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन विद इट्स कर्नल एज ग्रीन फंक्शन कि कर्नल जो हमें डिफाइन है वो ग्रीन फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। अब इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल reduce the boundary value problem d2u over dx2 plus lambda u of x equals to x where x lies between 0 and pi by 2 subject to the condition u of 0 equals to 0 equals to u of pi by 2 to a Fredholm integral इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन हम डिफाइन करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन में इफ वी कंपेयर दिस प्रॉब्लम with
equations 1 to 3 we have, अब ये इक्वेशंस 1 to 3 हमने कौन सी दी हैं या कौन सी इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, जो अभी प्रीवियस स्लाइड्स पे हमने रिलेशन डिफाइन किया फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन और ग्रीन फंक्शन में। तो ये कंपैरिजन उन इक्वेशन के साथ है जो हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डिफाइन किया था d2y/dx इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन जनरल फॉर्म a0 d2y/d x2 plus a1 of x dy/dx plus a2 of x y/x। तो उसके साथ हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलेंगी, h of x और f of x equals to x, h of x or f of x, source term or non-homogeneous term equals to x, row of x or weight function equals to 1। यहाँ पे अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो लैम्डा मल्टीप्लाई होता है रो ऑफ एक्स u ऑफ x। तो इस केस में रो ऑफ x हमारे पास 1 के इक्वल एंड L equals to d2/dx2 which is सेल्फ एडजॉइंट। अब सेल्फ एडजॉइंट है हमारे पास ऑपरेटर, तो इस केस में जो ग्रीन फंक्शन है वो भी सिमेट्रिक ही होगा g of x xi, and hence green function is symmetric from equation 7। और इक्वेशन 7 हमने क्या डिफाइन की थी, द इंटीग्रल representation is u of x minus 0 to pi/2 g of x xi into xi dxi plus lambda 0 to pi/2 g of x xi u of xi dxi, which is equation 1, where we used k of x equals to minus 0 to pi/2 g of x xi into xi dxi, which is equation 2. It remains to construct the green function from the
corresponding homogeneous boundary value problem d2 u over dx2 equals to 0 equation star u of 0 equals to 0 and u of pi by 2 equals to 0. Now solution of equation star is solution of star is u of x equals to ax plus b, u of 0 equals to 0 implies b equals to 0, and u of pi by 2 equals to 0 implies a pi by 2 equals to 0 implies a equals to again 0. फर्स्ट हमारे पास b इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड a की वैल्यू भी 0 आ गई, तो b 0 एंड a 0 मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है. सिंस द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम has trivial solution, that is u of x equals to 0. Therefore the green function exists and is given by g of x xi equals to ax plus b 0 less than or equals to x less than xi a star x plus b star xi pi by 2. Now g of 0 xi equals to 0 implies b equals to 0, and g of pi by 2 xi equals to 0 implies a star pi by 2 plus b star equals to 0 implies b star equals to minus a star pi by 2.
therefore g of x xi equals to ex and second a star into x minus pi by 2 0 less or equals to less than xi and xi less than x less or equals to pi by 2. Second, continuity at x equals to xi. तो continuity at x equals to xi हम किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं? implies a xi equals to a steric pi by 2 implies a over pi by 2 equals to a star or xi equals to some number p. Say this implies the value of unknown or arbitrary constants a and a star, b star. This implies a equals to p into xi minus pi by 2 and a steric equals to p xi. Thus g of x xi equals to p xi minus pi by 2 x 0 लेस देन xi और a स्टार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से p xi x minus pi by 2 xi less than x less than or equals to pi by 2. p की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फोर्थ प्रॉपर्टी यूटिलाइज करते हैं. नाउ पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स xi नेगेटिव माइनस पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स xi प्लस इक्वल्स टू 1 ओवर r ऑफ xi. अब जो जनरल फॉर्म हमने लिखी थी, जनरल फॉर्म क्या थी? पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स xi प्लस माइनस पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स xi माइनस इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर r ऑफ xi. अब यहाँ पे हमने क्या लिखा? 1 ओवर r ऑफ xi माइनस कॉमन लिया, तो ये टर्म पहले और ये टर्म बाद में, माइनस के साथ माइनस कैंसिल. पार्शियल जी और पार्शियल एक्स xi माइनस पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स xi प्लस इक्वल्स टू 1 ओवर r ऑफ xi. पार्शियल जी और पार्शियल एक्स, तो हमारे पास व्हेन x लेस देन xi, तो x लेस देन xi हमारे पास वैल्यू क्या है? p ऑफ xi माइनस पाई बाय 2. तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे. p ऑफ xi minus pi by 2 minus p xi equals to 1 over r of x 1, since r of x equals to 1.
taking p common, xi minus pi by 2 minus xi equals to 1, xi के साथ xi cancel, minus pi by 2 p equals to 1 implies p equals to minus 2 over pi. ये वैल्यू आ गई. Now double star becomes g of x xi equals to, एक ही वैल्यू हमें क्या मिली थी, और p equals to minus 2 over pi into xi minus pi by 2 into x 0 less or equals to x less than xi, and minus 2 over pi x minus pi by 2 into xi xi pi by 2. And k of x equals to minus 0 to pi by 2 g of x xi into xi dxi equals to minus 0 to pi by 2 g of x xi. तो g of x xi की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, xi, क्योंकि हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल a to b को हम कन्वर्ट करेंगे इक्वल्स टू a to x प्लस x to b. तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी हमारे पास, माइनस 0 to x, और 0 to x वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 by pi x minus pi by 2 minus 0 to x 2 by pi x minus pi by 2 into xi square dxi plus x to pi by 2 2 by pi x into xi minus pi by 2 into xi dxi equals to माइनस, और ये वैल्यू प्लस, जब माइनस दोनों में से कॉमन लेंगे इक्वल्स टू 2 बाई पाई, और जब x माइनस पाई बाई 2 वैसे ही xi क्यूब बाई 3 0 to x प्लस 2 over pi into x xi cube by 3 minus pi xi cube by xi square by 4 x to pi by 2.
which is equals to 2 over pi x4 by 3 minus x cube by 3 plus 2 over pi x into pi cube by 24 minus 2 pi cube by 16 minus x cube by 3 minus pi x square by 4 equals to 2 over pi x4 by 3 minus x cube by 3 minus pi square x by 24 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2। ये टर्म इसके साथ कैंसिल, ये ठीक है, माइनस 2 बाई पाई एक्स 4 बाई 3, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल। अब हमारे पास टर्म क्या रह गई हैं, एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और अगर इनका एलसीएम लूँ 6, 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब बाई 6, फर्स्ट टर्म आ गई, और इस टर्म से माइनस पाई स्क्वेयर x बाई 24, तो k ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब बाई 6 माइनस पाई स्क्वेयर x बाई 24। k ऑफ x की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई और ग्रीन फंक्शन की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। k ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 6 माइनस पाई स्क्वेयर x ओवर 24। Therefore, u of x plus lambda u of x equals to k of x plus lambda 0 to pi by 2 g of x xi u of xi dxi is the Fredholm or is the required Fredholm integral equation with non-homogeneous term f of x equals to x cube by 6 minus pi square x by 24, ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस टर्म, और u of x k of x plus lambda 0 to pi by 2 g of x xi u of xi dxi equals to फ्रेडहोम इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था फ्रेडहोम
इंटीग्रल इक्वेशन और ग्रीन फंक्शन के दरमियान कि किस तरीके से हम ग्रीन फंक्शन को यूटिलाइज करते हुए या ग्रीन फंक्शन एज ए कर्नल की फॉर्म में किस तरीके से हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के साथ ही हमारे इस कोर्स का इख्तिताम हुआ और इस कोर्स को ख़त्म करने से पहले या इख्तिताम करने से पहले थोड़ा सा कंप्लीट ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर से लेके आज 32nd लास्ट लेक्चर तक क्या चीज़ें डिस्कस की, क्या चीज़ें पढ़ी, उसमें मेन इम्पॉर्टेंट क्या थी। सबसे पहले तो ये डिफाइन करूँगा कि हमने इस कोर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब उसमें जो फर्स्ट पार्ट था वो कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी, बेसिक प्रॉपर्टीज यूटिलाइज हुई, बेसिक टेक्निक्स जिनको हमने इस्तेमाल करना था इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त। तो फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स हमारे उन बेसिक पे थे और उनको हम इन लाइक चैप्टर की फॉर्म दे तो चैप्टर में जैसे हम स्टार्ट में प्रीलिमिनरीज, तो प्रीलिमिनरीज आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स थे वो प्रीलिमिनरीज थे फॉर द कोर्स ऑफ MTH 471 इंटीग्रल इक्वेशन। उसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट हुआ। फर्स्ट जो फेज था हमारे पास या फर्स्ट पोर्शन अगर हम कहें ऑफ फ्यू लेक्चर्स, तो उसमें हमने डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी, डिफरेंट टाइप्स पढ़ी और डिफरेंट टाइप्स में क्या है मेन क्लासेस हमने डिफाइन की। मेन क्लासेस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन एंड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन और इनसे इंटर रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफाइन हुई, कुछ नई हैं कुछ पुरानी हैं। तो उस क्लासिफिकेशन के बाद हमने मूव किया पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या था, जो 2 मेन क्लासेस थी। अब वो 2 मेन क्लासेस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन एंड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, उनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पोर्शन में कंप्लीट प्रोसीजर, कंप्लीट मेथोडोलॉजी, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट एग्जिस्टेंस, डिफरेंट जो फिनोमेनास थे फॉर वन स्पेशल टाइप इन अ गो और इन अ सीक्वेंस। उसमें कहीं इंटरप्शन नहीं आई। हमने क्या किया, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन लिए और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड जो जो बातें थी, जो जो टॉपिक उससे रिलेट करते थे, वो तमाम के तमाम टॉपिक हमने वहाँ पे डिस्कस किए। अब उसका अगर शॉर्ट सा ओवरव्यू लें तो शॉर्ट सा ओवरव्यू में ये था कि होमोजीनियस इक्वेशन को हमने डील किया, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को हमने डील किया, फर्स्ट काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को डील किया, उसके बाद सेकंड काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व किया, जिसमें मेन जो टूल हमने यूज़ किए थे उसमें फर्स्ट मेथड आइट्रेटेड कर्नल का था कि किस तरीके से हम आइट्रेटेड या रिजॉल्वेंट की फॉर्म में किसी इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स लाइक लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली काम क्या करता है या उसका मेन मकसद या मेन फीचर क्या है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपकी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को या इंटीग्रल इक्वेशन को रिड्यूस कर देता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, और जब पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए तो उन पॉलिनोमियल की इक्वेशन की फॉर्म से वेल नोन इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इम्पॉर्टेंट रूल इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो उस ट्रांसफॉर्म के ज़रिए आप दोबारा से उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं जो एक्चुअल और एग्जैक्ट वैल्यू की फॉर्म में डिफाइन होगा। इसके बाद जो थर्ड फेज या थर्ड मॉड्यूल था हमारा फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, तो इसमें हमने तकरीबन लगभग 10 लेक्चर्स डिस्कस किए फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन पे, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन
व्हेन होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, डिफरेंट मेथड्स, उनके एस्पेक्ट्स चेक किए, उनकी पॉसिबिलिटी, उनकी एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस चेक करने के बाद कंप्लीट ओवरव्यू, कंप्लीट डिस्कशन, कंप्लीट स्ट्रक्चर बयान करने के बाद कि हमने किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, कौन सी चीज़ें किस लेवल पे डिस्कस करनी है और किस हद तक डिस्कस करनी है। तो उम्मीद है कि जो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई हैं वो आपको समझ आएंगी और आप उससे इंशाल्लाह काफ़ी मुस्तफ़ीद होंगे। अब ये तो बात हो गई थर्ड मॉड्यूल की, कि थर्ड मॉड्यूल हमारा स्टार्ट हुआ और थर्ड मॉड्यूल बेस किस पे कर रहा था, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन पे। और फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन बेसिकली फर्स्ट काइंड भी है हमारे पास, सेकंड काइंड भी। तो फर्स्ट काइंड के अलग से हमने प्रोसीजर्स देखे, सेकंड काइंड के अलग से प्रोसीजर देखे। इसके अलावा होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, उसके अलग से प्रोसीजर्स डिफाइन किए, और नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स। तो मेन जो हमारी टेक्निक्स यूटिलाइज हुई उसमें रिजॉल्वेंट कर्नल टेक्निक थी। रिजॉल्वेंट कर्नल टेक्निक इन टर्म्स ऑफ फ्रेडहोम माइनर एंड फ्रेडहोम डिटर्मिनेंट। तो बेसिक और मेजर पोर्शन जो थर्ड फेज में कवर किया गया वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट स्टाइल्स, वो सारी की सारी वॉल्यूम्स थर्ड चैप्टर में हुई। फोर्थ चैप्टर में हमने एक इम्पॉर्टेंट मेथड डिस्कस किया जो कि सॉल्व करता है नॉर्मली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स ऑफ एनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसकी हमें ज़रूरत कहाँ पे पड़ी थी कि जब हम वो इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को इन टर्म्स ऑफ फ्रेडहोम, तो बाज़ औक़ात आप सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं और उसमें आपको वो वैल्यू एग्जैक्ट मिलती नहीं है। तो फोर्थ में हमने ग्रीन फंक्शन, वेल नोन ग्रीन फंक्शन डिफाइन किया, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, उसे डिस्कस किया और उससे रिलेटेड डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस डिफाइन की। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या थी ग्रीन फंक्शन की, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के ज़रिए हमने ग्रीन फंक्शन को कैलकुलेट करना सीखा। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स थी जिनसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के ज़रिए जब हम ग्रीन फंक्शन बनाते हैं तो उसमें क्या क्या वैल्यूज़ हमें दरकार होती हैं। इसके अलावा हमने आइगन फंक्शन एक्सपेंशन मेथड पढ़ा, वो भी एक पावरफुल टूल है ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने की फॉर्म में। शर्त ये है कि हमारे पास जो सोर्स टर्म है वो नॉन होमोजीनियस और इंटीग्रल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस फॉर्म में होनी चाहिए। तो नॉन होमोजीनियस फॉर्म के लिए हमने फर्स्ट क्या मेथड पढ़ा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, और सेकंड हमने आइगन फंक्शन एक्सपेंशन ऑफ द सीरीज। वो वैल्यू हमने पढ़ी, वो रिजल्ट कैलकुलेट किया, उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स देखी, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी ग्रीन फंक्शन की, और एट द एंड रिलेशन डिफाइन किया बिटवीन ग्रीन फंक्शन एंड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। तो जनरली भी हमने उस चीज़ को प्रूव किया कि किस तरीके से फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट होता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एज ए कर्नल लाइक ग्रीन फंक्शन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। उससे रिलेटेड एग्जांपल देखी। एग्जांपल में हमारे पास केस क्या आया, जब एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन बनाई तो उस केस में सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट आया, और लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन 1 और x की फॉर्म में उसे परफॉर्म किया, और उससे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से हमने रिड्यूस किया बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को इन टर्म्स ऑफ फ्रेडहोम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, कि किस तरीके से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टेरा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में। आज का लेक्चर
यहीं पे इख्तिताम करते हैं, जहाँ पे कोर्स कंप्लीट हुआ कि हमारी इस कोर्स के सिलसिले में जितनी भी डिस्कशन थी, जितने भी लेक्चर्स थे, जितना कुछ मैं डिस्कस कर सकता था, मैक्सिमम जो चीज़ें मैं आपको समझा सकता था, वो सारी चीज़ें मैंने पूरी कोशिश की हैं कि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो। इससे रिलेटेड आपको एक बुकलेट मिलेगी और उसमें इंशाल्लाह डिटेल से ये बातें लिखी होंगी। वहाँ पढ़ते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से आराम से गौर व फिक्र से सुनते हैं और देखते हैं। फाइनल इम्तिहान तक अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो, और फाइनल इम्तिहान के लिए मेरी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। तब तक अल्लाह हाफिज।